Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is your science lecture of grade 5th, and I am your science teacher Aparna Pandey from Arjun Progressive School, Lavajod. So student, as you all know that we have started our chapter number 1, growing plants from seeds to seedlings. And in this chapter we have discussed that why all seeds are not able to grow into new plants and what is germination, what is the role of cotyledon, how seeds to dispersal or how seed dispersal takes place, as well as we have also discussed that plant, those who do not have seed, how they grow new plant from them. So these all things we have discussed in our previous videos. Now student, in today's class we are going to discuss our new topic, that is crops and vegetables. It is given in your page number 6. Okay, it is given in your page number 6. But it is written here, crops and vegetables. Crops and vegetables. Okay. Now students, see what it is saying here, that we know that for conditions for growing the plant or conditions that are suitable for healthy germinations of seeds can grow better crops. Means what want to convey us that if we provide suitable conditions to plants for germination, then definitely the seed will germinate in a healthy manner, right? अगर हम अच्छे से अच्छी कंडीशंस अपनी सीड को देंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से जर्मिनेट करेगी. दिस वी नो. सो लेट्स डिस्कस दैट व्हाट आर दीज कंडीशंस. ओके, सो यू कैन सी हियर दैट वी नीड सुटेबल सॉइल, वाटर, मिनरल्स, ह्यूमस, टेम्परेचर एंड सनलाइट फॉर द growth of the plant. Okay, we know that the suitable, what are the things that helps seed in growing or that help changing seed into seedling. These are the suitable conditions that are necessary. And what are these conditions? These are that seed need proper soil, water, minerals, humus, temperature and sunlight. When these all things are available in a suitable manner, then only our seed is able to change into the seedling, right? Now when we say that soil, see these are the water, same, minerals are different, that is present in the soil. Then we have humus, means the moisture that present in the soil. Temperature, you know, sunlight, you know, right? Now here we are going to discuss the types of soil. मीन्स कि कैसे सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स हमारी अच्छे से ग्रो हो सकती है. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. लेट अस सी क्ले सॉइल. क्ले सॉइल इज अ टाइप ऑफ सॉइल वेयर वी कैन ग्रो राइस एंड जूट. Clay soil is a type of soil where we can grow rice and jute properly. Okay. Then we have sandy soil. What is the role of sandy soil? Sandy soil help us in growing crops like wheat, onion, groundnut. Sandy soil helps us to grow the crops like wheat, onion, groundnut. Okay, and especially onion and groundnut need a well defined sandy soil, whereas wheat need sandy एज वेल एज इरिगेटेड सॉइल. मतलब जहाँ पे आप प्रॉपरली अच्छे से पानी डाल सकें, वो सॉइल पानी एब्जॉर्ब कर सके, इस तरीके की सॉइल जहाँ पे होगी वहाँ पे कौन सी क्रॉप अच्छी होती है? वीट अच्छी होती है. जहाँ पे हमारी क्ले सॉइल होती है, क्ले जैसी सॉइल होती है, वहाँ पे हमारा क्या अच्छा होता है? राइस एंड ज्यूट अच्छा होता है. देन वी हैव black soil. Then we have black soil. Now what is the role of black soil? This black soil help us in growing cotton well. जहाँ black soil होगी उस एरिया में cotton plant अच्छे ग्रो होंगे. Okay, where there is a black soil in that area, cotton plants grow well. Similarly, we have another type of soil, moist soil. When there is a moist soil,
टी प्लांट्स ग्रो वेल। जहाँ मॉइस्ट सॉइल होती है वहाँ कौन से प्लांट्स अच्छे होते हैं? टी प्लांट्स। जो आप घर में देखते हैं ना, पेरेंट्स आपके टी लेते होंगे, तो वो टी किससे बनती है? टी लीव्स से बनती है। और वो टी लीव्स कहाँ से आती है? टी प्लांट से आती है। तो ये टी प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं? दीज टी प्लांट्स ग्रो इन अ मॉइस्ट सॉइल। These tea plants grow in a moist soil. Then we have dry soil. Dry soil helps in growing maize. Dry soil helps in growing maize. Similarly, we have coastal areas. Coastal areas are such areas where coconut type of trees grows well. Okay, जहाँ पे coconut tree अच्छे से grow होती है, that areas are called the coastal areas. So these are some types of soil. कौन कौन से सॉइल के बारे में पढ़ा हमने? क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द राइस एंड जूट. सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द व्हीट, अनियन एंड ग्राउंडनट. फॉर व्हीट वी नीड सैंडी एज वेल एज इरिगेटेड सॉइल, एंड फॉर अनियन एंड ग्राउंडनट वी नीड वेल डिफाइंड सैंडी सॉइल. Black soil help us in the growth of the cotton. Black soil help us in the growth of the cotton. Then we have moist soil. Okay, then we have moist soil. Moist soil helps us in the growth of the tea plant. Moist soil help us in the growth of the tea plant. Then we have dry soil. Dry soil helps in the growth of the maize. Maize we grow in the dry soil. And then we have coastal areas where coconut tree grows. Okay. So these are the types of soils. So when देखिए बेटा, क्रॉप तो है बट यू कैन नॉट ग्रो एनी क्रॉप एनीवेयर. कोई भी क्रॉप उठा के आप किसी भी सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते. वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप नीड्स सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ. ओके, जैसे हमारी क्रॉप है उस क्रॉप पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के सॉइल में अच्छी ग्रोथ करती है. बिकॉज सनलाइट सबको मिलेगी, वाटर भी मिलेगा. मिनरल्स कैसे मिलेंगे? मिनरल्स डिपेंड्स अपॉन दी सॉइल. तो कैसी सॉइल है उसके अकॉर्डिंग फिर उसको क्या मिलेंगे? मिनरल्स मिलेंगे. सो दीज आर सम सुटेबल कंडीशन. जैसे सनलाइट सबको मिल गया, वाटर सबको मिल गया. ह्यूमस भी डिपेंड करता है एरियाज में कि किस एरिया में आपके कोई क्रॉप ग्रो हो रही है. तो ऐसे नहीं है कि सब कुछ एक से ही जगह पे हम ग्रो कर पाएंगे. नो, पर्टिकुलर सीड रिक्वायर्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर इट्स ग्रोथ. ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या दिया है. एक बार सारा कुछ पढ़ लेते हैं. देखिए क्या कह रहा है ये. इफ वी नो द कंडीशंस दैट आर सुटेबल फॉर द हेल्दी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स वी कैन ग्रो बेटर क्रॉप. अगर हमें पता हो कि कैसी कंडीशंस हमारे क्रॉप को चाहिए हेल्दी ग्रो होने के लिए, तो हम अपनी क्रॉप को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. वी नो दैट प्लांट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ नीड सुटेबल सॉइल, water, minerals, humus, temperature and sunlight. Different plants require different kinds of soil. Different plants require different kinds of soil. For example, rice and jute grow in clay soil which holds enough water. जो अपने अंदर बहुत सारा water hold करके रखती है. That is why more rice is grown in और अराउंड बंगाल. इसीलिए बंगाल की तरफ को राइस ज़्यादा होता है. वीट इज ग्रोन इन द सैंडी एंड इरिगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश. अब जो वीट है वो सैंडी सॉइल व इरिगेटेड सॉइल में होता है. इरिगेटेड जिसमें आप अच्छे से पानी डाल के सॉइल को वाटर अवेलेबल करा सकें. अब ये कहाँ होता है? ये पंजाब में, उत्तर प्रदेश में. अभी आप देख सकते हैं उत्तराखंड में ऑल्सो इट इज़ नाउ अवेलेबल. सो ज्वार एंड बाजरा ऑल्सो ग्रोन इन दी सैंडी सॉइल लाइक दैट ऑफ दी राजस्थान. अब ज्वार और बाजरा भी ग्रो होता है लेकिन वो राजस्थान में तो थोड़ा सा ड्राई होता है, तो राजस्थान वाले सॉइल में अच्छा ग्रो होता है. देन वी हैव ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया इज गुड फॉर दी कॉटन. ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए चाहिए, दैट इज गुड, लेकिन वो कहाँ होती है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया. देन टी प्लांट्स नीड मॉइस्ट सॉइल एंड मोस्ट टी प्लांटेशंस आर इन hilly places on the slopes of hilly areas of Assam, Nilgiris and Darjeeling. तो हमारा टी कहाँ होता है? टी प्लांट दार्जिलिंग में, आसाम में एंड नीलगिरीज में. ठीक हो गया. मेज ग्रोज वेल इन ड्राई सॉइल ऑफ प्लेन्स और हिल्स. ठीक है, तो मेज हमारी कहाँ अच्छे से होती है? ड्राई सॉइल, चाहे फिर वो हिल्स की ड्राई सॉइल हो चाहे वो प्लेन्स की ड्राई सॉइल हो.
कोकोनट ट्रीज ग्रोस प्रॉपरली ओनली इन द कोस्टल एरियाज। कोकोनट ट्री हमारे कहाँ अच्छे से ग्रो होती है? सिर्फ कोस्टल एरियाज में। Onion and groundnut need a well-defined sandy soil. Onion and groundnut need a well-defined sandy soil. So this is the type of the crops and vegetables. Now, when we talk about the types of the crops, so in India mainly there are two types of crops, that is Rabi crops and Kharif crops. Rabi crops and Kharif crops. R-A-B-I Rabi crops, खारिफ KHARIF खारिफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती है बेटा? रबी क्रॉप्स होती हैं जो आपकी विंटर्स में ग्रो करी जाती है। कब ग्रो करी जाती है? विंटर्स में ग्रो करी जाती हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू अप्रैल। नवंबर से अप्रैल के बीच में जो क्रॉप आपकी ग्रो करी जाती हैं उन क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। एंड द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो करी जाती हैं फ्रॉम जून टू अक्टूबर, उन्हें हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। ओके, जो जून से अक्टूबर के बीच में होती है उन्हें हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? रेनी सीजन को हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं और विंटर सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल को हम क्या कहते हैं? राबी क्रॉप्स कहते हैं। देख लीजिए राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वीट एंड ग्राम। खारिफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल देखें तो राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है ये? वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। Vegetables like cabbage, cauliflowers, beans, radish and peas grow well during the winter. In the summer, vegetables like pumpkin, brinjal and gourds grow well. These days, manures and chemical fertilizers are added to the soil to increase the production of the vegetable. अब हम क्या करते हैं? अब देखिए, because techniques are there, technology has helped us in many ways, science has done very much progress. So, to improve the quality of our soil, we have different types of the fertilizers as well as manures that help us in the growth of our seed. Okay, so dead and decaying plants and cow dung are the common manures. कुछ dead and decaying plants, उसके अलावा काउ डंग गाय का गोबर जिसे हम कहते हैं, आर द नेचुरल मैन्योर्स। ये क्या होते हैं? ये नेचुरल एंड दे आर क्वाइट गुड for the health of the soil as well as for the plant. The common fertilizers that we use are urea, ammonium sulfate, potassium nitrate and super phosphates. बेटा ये क्या है? ये नेम्स हैं आपके। ये वो देखिए मैन्योर्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं मैन्योर्स मीन्स खाद। अब खाद होती है दो टाइप की। एक तो आपकी क्या होगी? नेचुरल, जिसे हमने क्या कह दिया? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड काउ डंग। तो ये तो हमारी नेचुरल मैन्योर आ गई। अब नेचुरल मैन्योर के बाद जो साइंस ने हमें हेल्प करी है ऐसे कुछ मैन्योर्स देने में जिनकी हेल्प से हम अपनी क्रॉप को अच्छा ग्रो कर सकते हैं, तो व्हाट आर दीज? तो ये उनके नेम हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सुपर फॉस्फेट्स। ओके, अब देखिए फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट अडॉप्ट द फॉलोइंग मेथड्स। अब क्या कह रहा है? अब अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट्स की हमें कुछ मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए। क्या है वो मेथड्स? लेट्स सी, इट इज गिवन इन पेज नंबर 7। यू कैन कम हियर, दीज आर द मेथड्स। लेट्स डिस्कस व्हाट इट इज। यूज हेल्दी एंड राइप सीड्स ऑफ बेस्ट वेराइटी फॉर सोइंग। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अच्छी और राइप, बिल्कुल जो सीड, पकी हुई सीड हो, ऐसी वाली सीड को आपको यूज करना है बोने के लिए। ठीक है, देन प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग। और ऐसे नहीं कि डाल दिया, अच्छे से जिस टाइम पे आपको बीज बोना है उससे पहले वहाँ के एरिया को थोड़ा ठीक करिए, वो सॉइल को थोड़ा सा रेडी करिए कि जब आप सीड उसमें डालें तो सॉइल उसको एक्सेप्ट कर सके अच्छे तरीके से। एड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। सॉइल में आपको मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है। इरिगेट द सॉइल प्रॉपरली। इरिगेट मीन्स वाटरिंग द सॉइल। जिस भी फील्ड में आपने अपनी सीड को सो करा है तो वहाँ पे आपको इरिगेट करना पड़ेगा, वाटर अवेलेबल करवाना पड़ेगा। क्रॉप रोटेशन हेल्प्स टू रिटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड इंक्रीज द
प्रोडक्शन। फिर क्रॉप रोटेशन करेंगे तो उसकी मदद से आपको क्या हो जाएगा कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी और प्लांट का प्रोडक्शन अच्छा होगा ना। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन मीन्स कि हर बार एक जगह पे सेम तरीके की क्रॉप को ग्रो नहीं करना है। हर एक मीन्स आपको उसी एरिया में आप जैसे एक बार अगर आपने कोई एक क्रॉप ग्रो करी तो नेक्स्ट टाइम आप दूसरी उस एरिया में ग्रो कर लीजिए, बिकॉज सेम तरीके की क्रॉप अगर आप यूज करेंगे तो फिर उससे उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता क्रॉप का। तो क्रॉप रोटेशन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया। नाउ द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। अब जो आपके पास क्रॉप है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सीड सो कर दी, क्रॉप हमारी ग्रो हो गई। अब जो क्रॉप है उसे हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे हम उसे स्टोर करेंगे अपने पास? ठीक है। सो फॉर बेटर एंड हेल्दी क्रॉप्स वी मस्ट प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। फॉर बेटर एंड हेल्दी क्रॉप्स वी मस्ट प्रोटेक्ट द क्रॉप। क्योंकि क्रॉप तो हम फील्ड से लेके आ गए, लेकिन अभी उसे प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, बिकॉज वो एक ग्रेट यील्ड में होती है, बहुत सारी क्वांटिटी में होती है, तो एक साथ तो हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते तो रखे रखे तो उसके खराब होने के चांसेस हैं। तो उसे हम कैसे प्रिजर्व करें, दैट इट इज़ गोइंग टू टेल अस। सो प्रोटेक्ट द क्रॉप इन द फील्ड अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक गोट, काउ, बुफेलोज बाय प्रॉपर फेंसिंग। मतलब सबसे पहले तो आप अपनी क्रॉप को कैसे बचाएंगे? एनिमल्स की ग्रेजिंग करने से बचाएंगे। ग्रेजिंग मतलब जैसे कहते हैं ना, एनिमल्स हमारे खाने आ गए क्रॉप को, जनरल लैंग्वेज में आप कहते हैं कि चरने आ गए, तो वो चीज़ से आपको अपनी क्रॉप को बचाना है। कैसे बचाएंगे? वेरी सिंपल। अपने फील्ड्स को आप क्या करेंगे? फेंस कर लेंगे, उसके किनारे किनारे ऐसे कुछ बैरियर्स लगा देंगे जिसको एनिमल्स क्रॉस करके आपके फील्ड के अंदर ना आ पाए। Then protect the crops from being eaten or spoiled by rats, mice, squirrel and other birds. फिर अपने सॉइल्स को आपने अपने क्रॉप को रेड से, माइस से, बर्ड से बचाना है। The diseased plant should be removed from the fields regularly. This reduces the chance of spreading of disease. जो क्रॉप खराब हो रही है उसको बाकी हेल्दी क्रॉप के साथ नहीं रखना है। उसको आपको टाइम टू टाइम चेक करते जाना है कि अगर कोई क्रॉप खराब हो रही है तो उतनी क्रॉप को वहाँ से रिमूव कर देना है, फील्ड से हटा देना है, उसे ग्रो नहीं करने देना, वरना उसकी डिजीज बाकी के एरिया की क्रॉप में भी स्प्रेड हो जाती है। देन प्रोटेक्ट द क्रॉप अगेंस्ट डिजीजेस एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। ठीक है, क्रॉप को आपको किससे प्रोटेक्ट करना है? डिजीज से और हार्मफुल इंसेक्ट से। अब ये कैसे करेंगे? तो क्रॉप शुड बी स्प्रेड विद इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स सच एज गैमेक्सिन एंड डीडीटी। अब मैंने क्या कहा? क्रॉप को आपको डिजीज से बचाना तो है, पर कैसे बचाएंगे? सो फॉर दैट वी हैव टू पुट इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को किल करने के लिए होते हैं, पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करने के लिए होते हैं। तो व्हाट आर दिस? जैसे गैमेक्सिन एंड डीडीटी, ये दो तरीके के केमिकल्स आते हैं जो हमारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द सीड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मॉइस्चर। आफ्टर हार्वेस्टिंग, अब जब सीड निकाली तो उसके बाद क्या करना पड़ता है? वी मस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर। मॉइस्चर से उसे बचाना है। दीज हैव टू बी केप्ट सेफ फ्रॉम rats, moles, birds, squirrels and insects. So the seed should be stored in a airtight seed containers. ताकि जो सीड आपने हार्वेस्ट करी है उसे आप इस तरीके से रखें कि उसको कोई इंसेक्ट ना लगे, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना आए जो आपकी सीड को खराब करे। तो आपको अपनी सीड को प्रोटेक्ट करना है। A good and healthy crop adds to the wealth of a country. जितनी अच्छी हेल्दी क्रॉप होगी उतनी ज़्यादा हमारी कंट्री की वेल्थ बढ़ेगी। So students, here today we have completed our chapter number 1, growing plant seeds from seedlings, and all the topics here we have discussed briefly. If you have any doubt related to anything, then please go through your book also. After watching video, read your book also. It will help you in understanding things better. I hope you all will like this video. Thank you and have a nice day ahead.